नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक पर्पजेज के लिए द हिंदू का ये एडिटोरियल आज तारीख है 24 अगस्त 2016। एडिटोरियल का हेडिंग है नीडेड साइंटिफिक फ्लड मैनेजमेंट, अर्थात भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाढ़ का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। आइए पहले हम इस एडिटोरियल को एज इट इज इसमें सिंगल रीडिंग देंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में समझेंगे। India's vulnerability to severe flooding during the monsoon is spectacularly demonstrated year after year, with the season invariably ending in significant loss of life and property. One research study for the period 1978 up to 2006, based on official data reports that there were 2,443 flood events that led to the death of nearly 45,000 people and caused economic losses of $16 billion. The same story is playing out this year too. Residents of 5 states are currently struggling to cope up with effects of intense rainfall. Many of those lucky to have been rescued owe it to the National Disaster Response Force (NDRF), but such response systems naturally have limited efficiency in predominantly rural states such as Bihar. What stands out in the annual cycle of floods is the generally trady pace of preparation for rescue and relief. Capacity building to handle catastrophic weather events is poor, and serious attention is not given to setting up relief camps, creating crisis-proof health infrastructure, and stockpiling dry rations and medicines. The collapse of systems in acute conditions is undoubtedly a reflection of the lack of robust regular services that could be upgraded for emergencies. This is particularly true of health facilities in Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. There are cascading outcomes of infections and absence of care for pregnant women. These challenges require to be met in emergency mode. An integrated approach to managing floods requires a sound understanding of the patterns that rivers such as the Ganga and its tributaries display during the monsoon. Governmental understanding of the problem generally relies not so much on advanced techniques such as mapping based on satellite imagery and geographic information system, the GIS, but on ground level surveys and reportings. In Bihar's case, the shifting patterns and breaches of the Kosi have added to the complexity of the problem, which requires a deeper understanding of the areas most at risk, which is essential in creating a defensive infrastructure. The Kosi itself poses a danger to vast part of the state, as its embankments are no match for the fury of floodwaters. Chief Minister Nitish Kumar's demand that the Farakka barrage itself be removed to allow the Ganga to freely flow comes in the wake of steady silting of river and its tributaries, raising the risk of annual flooding. There, these are not new problems, and the quest for solutions such as dams, relief canals,
and barrages dates back more than a century along the Caucase course. The impoverishing annual losses should lead to a more integrated view of the problem, drawing upon technologies to both mitigate flooding and provide rescue and relief. So that is what this editorial of the Hindu tries to make us understand that scientific flood management is needed. ओके, आइए हम इसको अब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में इसको इंटरप्रेट करते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, भारत में जो मानसून का मौसम होता है जुलाई से सितंबर तक, उसके दौरान मानसून के मौसम के दौरान प्रतिवर्ष बहुत अधिक बाढ़ की घटनाएं होती हैं और भारत उन बाढ़ की घटनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। अर्थात बाढ़ की ऐसी भौगोलिक घटनाएं भारत में अवश्य और बिना किसी नागा के होती रही हैं। तो इस ऐसे में हर वर्ष बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के, अर्थात ये एक प्रकार का स्थायी फीचर हो गया है कि भारत में बाढ़ के कारण बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में जीवन और संपत्ति की हानि होती है प्रतिवर्ष। एक रिसर्च स्टडी में यह बताया गया था कि 1978 से 2006 के बीच में 2443 बाढ़ की घटनाएं हुई, जिसमें 45,000 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई और इससे जो वित्तीय हानि हुई बाढ़ की घटनाओं से वो 16 बिलियन डॉलर की वित्तीय हानि हुई। यही कहानी इस साल फिर से अपने आप को दोहरा रही है। 5 राज्यों के निवासी इस समय तीव्र वर्षा होने के जो कुप्रभाव हैं उनका बाढ़ के रूप में सामना कर रहे हैं और उस बाढ़ से पार पाने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से ऐसे 5 राज्यों के लोग जिनमें से जो अधिक भाग्यशाली रहे, उन्हें एनडीआरएफ की टीम्स ने, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम ने रेस्क्यू अर्थात कि उनका बचाव और राहत पुनर्वास, उनको वो सुविधाएं कुछ ही भाग्यशाली लोगों को मिल पाई हैं। जबकि जो हमारे प्रीडोमिनेंटली रूरल स्टेट्स हैं, जो ऐसे स्टेट्स जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र का दायरा बहुत सघन है, बहुत अधिक मात्रा में ग्रामीण भाग जो है फैला हुआ है और इंटीरियर के ऐसे आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक स्थान पर एनडीआरएफ की सहायता का पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। बिहार जैसे राज्यों में, क्योंकि वहां पर ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण जो बस्तियां हैं वो बहुत अधिक आंतरिक भागों तक फैली हुई हैं, इसलिए वहां पर भी इस प्रकार के एनडीआरएफ की टीम्स का जो रेस्क्यू और राहत और बचाव कार्य है उसका पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो वार्षिक चक्र है बाढ़ का, इसमें हमारी जो बचाव और राहत करने की जो कैपेसिटी है, एक क्षमता है राहत और बचाव की क्षमता, उसकी गति आपदा के आने की गति की तुलना में काफी धीमी रहती है। और ये स्वाभाविक सी भी बात है क्योंकि जो कैटास्ट्रोफिक वेदर इवेंट्स होते हैं, मौसम से जुड़े हुए कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं, ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स एक ज्योग्राफी की या एनवायरनमेंट की, समझिए आजकल के दृष्टिकोण से एक स्टैंडर्ड टर्म है, इसको याद रखिए। कैटास्ट्रोफिक इवेंट में आप क्या क्या शामिल करेंगे? ओलावृष्टि अर्थात ओले गिरना, बादल का फटना, या किसी प्रकार की बहुत ज्यादा बर्फबारी, बहुत ज्यादा वर्षा, या फिर इसको इस तरीके से कहिए कि जो बादलों की ओर से, आकाश की ओर से जो भूमि पर अचानक तीव्र प्रेसिपिटेशंस होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार से लोगों के बह जाने की या इस प्रकार की जो आपदाएं हैं वो आती हैं। ये सब घटनाएं आप कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के अंतर्गत
शामिल कर सकते हैं। और इन कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, क्योंकि ये अचानक होते हैं और बहुत तीव्र मात्रा में होते हैं, बहुत भारी वॉल्यूम के साथ होते हैं, तो इसलिए इनके प्रति जो इनके प्रतिरोध के लिए, इनसे बचाव और राहत के लिए जो क्षमता का निर्माण है वो अचानक से नहीं हो पाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपदा के आने का कोई समय नहीं है, आपदा बिल्कुल बिना बताए और अचानक आती है। दूसरी बात है कि आपदा के आने की गति रेस्क्यू और बचाव और राहत कार्य के इम्प्लीमेंट करने की गति से हमेशा तेज होती है। ये प्राकृतिक फैक्टर है इसके अंदर। इसमें जो इसके अलावा जो दूसरा काम हम आपदा प्रबंधन के लिए कर सकते हैं वो है कि सीरियस अटेंशन देना, बहुत ध्यानपूर्वक रिलीफ कैंप्स, जो बचाव के शिविर होते हैं, बचाव के शिविर स्थापित करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। इसके अलावा जो मुख्य बात सामने आती है कि एक क्राइसिस प्रूफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास जो कि किसी आपदा के आने के समय जो अस्त व्यस्त ना हो जाए। तो ऐसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपदा के समय में अस्त व्यस्त ना होकर के व्यवस्थित रूप से चलती रहे, और खाने पीने की सूखी वस्तुओं का जो पैकेज्ड और सुरक्षित खाने पीने की वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता तथा दवाइयों की उपलब्धता, ये सब जो है हमारे फ्लड मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन राज्यों में स्वास्थ्य तथा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रेगुलर सर्विसेज हैं, जो रोबस्ट रेगुलर सर्विसेज हैं, यानी कि जैसे उदाहरण दिया गया है द हिंदू के एडिटोरियल में कि जो कुछ पिछड़े राज्य माने जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इनमें जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनकी जो रेगुलर स्थिति है, उनकी जो नियमित स्थिति है, बिना आपदा के, जो सामान्य स्थिति में आपदा रहित काल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वह भी पुअर है। और इसलिए यदि सामान्य स्थिति वाला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सशक्त होगा, वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और ज़्यादा बेहतर होगा, तभी उसको एक इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी आपदा के अचानक आ जाने पर। इसलिए जब रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ही कमजोर है तो आपदा के समय तो वो और भी अधिक अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि यहाँ इस प्रकार के राज्यों में इन्फेक्शंस और संक्रमण और बचाव और राहत की कमी स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बहुत अधिक देखने में आती है, और वो कमी अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को भी बहुत ज्यादा मात्रा में इन क्षेत्रों में प्रभावित करती है। इसके अलावा ये सभी जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि ये जो आधारभूत संरचना और हेल्थ सर्विसेज हैं, इनको हमें इमरजेंसी मोड में, इमरजेंसी बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता पर लेकर ठीक करने की आवश्यकता है, और बहुत शीघ्र। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग फ्लड्स रिक्वायर्स ए साउंड अंडरस्टैंडिंग। अब यह है कि जो प्रबंध, जो मैनेजमेंट, जो सरकारी अधिकारीगण, जो सरकारी विभाग इस फ्लड्स के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो जिन्हें इस संबंध में अपडेटेड होना चाहिए, और उन्हें किस किस प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, तो इसमें द हिंदू में कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों को बहुत अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए मानसून के समय में गंगा और इसकी सहायक नदियां किस प्रकार का व्यवहार दर्शाती हैं, उसके पैटर्न की समझ होनी चाहिए। गंगा और ट्रिब्यूटरीज के मानसून के समय में जो व्यवहार रहता है उसके पैटर्न की इनको अधिकारियों को समझ होनी चाहिए। इसके अलावा जो सरकारी सोच समझ है इस संबंध में, इस समस्या के संबंध में, वो किस बात के भरोसे है, वो जो है आज के आधुनिक समय में भी
केवल जमीनी स्तर के जो सर्वे होते हैं और परंपरागत रूप से जो रिपोर्टें मैनुअली तैयार की जाती हैं उन्हीं के भरोसे अपना कार्य चला रहे हैं, जबकि उनको साइंटिफिक टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि उपग्रह आधारित इमेजिंग, उपग्रह आधारित चित्र प्राप्त करना, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमारे अधिकारी गणों को होना चाहिए। और इसी प्रकार से जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस की जानकारी पूरी तरीके से और इन टूल्स का प्रयोग बाढ़ के मैनेजमेंट में किया जाना चाहिए। बिहार का विशेष तौर पे यदि मामला लें तो वहां पर कोसी नदी जो अपना रास्ता बदलती रहती है, इस प्रकार का जो शिफ्टिंग पैटर्न है वहां का, और कोसी नदी अपने तटों का जो है अतिक्रमण करती रहती है, अपने तटों से बाहर जाकर के बहती रहती है, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए बहुत गहरी समझ की आवश्यकता है उन एरियाज में जो कि सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। और ऐसे एरिया क्या हैं? सबसे पहली बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कोसी नदी के तट हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और वो फ्लड वाटर्स जो हैं उनसे अतिक्रमण करके नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के निचले भागों में भर जाता है। इसके कारण से ये बाढ़ की स्थिति आ जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये मांग की है कि फरक्का बैराज जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, बंगाल और बिहार की सीमा पर आप इसको लोकेट कर सकते हैं। आप मैप में देखिए कहाँ पर एग्जैक्टली फरक्का बैराज है। तो फरक्का बैराज जो है जो कि बंगाल और बिहार की सीमा के आसपास जो है स्थित है, वो उसे हटा दिया जाना चाहिए, जिससे कि गंगा नदी जो है वो मुक्त वेग से फ्री होकर के फ्री फ्लो में बह सके। लेकिन ये जो हमारी जो उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उपाय अपनाए थे प्रारंभिक तौर पर, आजादी के तुरंत बाद जो बाढ़ के समय में विचार करते समय भारत सरकार ने उपाय अपनाए थे, जिनमें शामिल था बांध बनाना, बाढ़ से बचने का उपाय के तौर पर बांध बनाए गए। दूसरी बात कि रिलीफ कैनाल्स, कुछ ऐसी नहरें निकाल दी गई उन जलाशयों से जो बाढ़, जिससे कि बाढ़ ना आ पाए और जो अतिरिक्त पानी है वो हमारी नहरों में प्रवाहित हो जाए। दूसरी बात ये थी, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हुए, यानी कि डैम्स एक उपाय था और रिलीफ कैनाल्स दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय था जो है बैराज बनाना, ठीक है। तो ये बैराज बनाना, ये तीनों प्रकार के उपाय जो है 1 शताब्दी से भी अधिक पुराने हैं, जहां तक कि हम कोसी नदी के तट की बात करें तो इस प्रकार से ये जो वार्षिक आधार पर ये जो नुकसान होता है संपत्ति और जान माल का, इसके संबंध में हमें टेक्नोलॉजिकल अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। तकनीकी रूप से इसका सामना हमें करना चाहिए ताकि ना सिर्फ फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सके वरन एक प्रभावी बचाव और राहत भी जनता को उपलब्ध कराई जा सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।